welcome back to the class. So this is very first class of Block 1, Unit 1, Approaching the Iliad, the Epic and the Homeric Tradition. So in this class, we are going to understand the story of Iliad. We'll understand it in detail. We will understand what is epic, what are its characteristics, what is the meaning, and what are other epics in our Western literature. And then finally, we will understand what is this Homeric tradition. So to begin, first of all, you'll have the understanding of epic tradition, what is Homeric tradition, and you'll develop an analytical, a deep understanding आप लोग बना लोगे Iliad की. So let's get started. So when we talk about the Iliad, it is a poem, epic poem written by the Greek poet Homer. That's right. Okay. So it is composed around 8th century BC. So when we are talking about 8th century BC, that means हम आज से 3000 2000 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं. Okay. So it is all about final last week. So this Trojan War is basically 10 years war between the city of Troy and the Greeks. Greeks को हम बोलते हैं Athenians और ट्रॉय सिटी के सिटीजन्स को हम बोलते हैं या किंग्स उन सबको बोलते हैं ट्रोजन्स. ओके, सो अब first of all, it is very important for you to understand why this war happened. What was the reason? हो क्यों रही थी ये war? 10 साल की war हुई, इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, इतने सारे क्योस हो गए, बट ये war हुई क्यों थी? ये war हुई थी क्योंकि प्रिंस पैरिस, जो कि सिटी ऑफ ट्रॉय से बिलोंग करते थे, वो भगा के ले आए थे ही abducted Helen with him. Abduction means when we take someone forcefully or we elope with someone. Okay, so अब हेलेन जो ब्यूटीफुल क्वीन थी और वाइफ थी मेनेलस की, जो रहते थे ग्रीक सिटी में, उनको ले आए, उनका एब्डक्शन हो गया और ट्रोजन प्रिंस पेरिस उन्हें ले आए. अब हम सिमिलैरिटी देखते हैं हमारे इंडियन एपिक्स में. व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन एपिक्स, रामायण, महाभारत, दीज आर आल्सो epic poems. So these also correlate with these stories, and in the upcoming slides we'll understand that how they correlate, what is the intertextual differences between the Ramayana, Mahabharata and Iliad. So it is very important for you to understand the story of Iliad. So pay a little attention here, because if the plot is clear, if the story is clear, everything is clear to you. It will help you to analyze the characters, the chaos, the climax and everything. So listen carefully. So when we talk about the story of Trojan War, we have already talked about that it is a war, 10-year wars, and it first of all talks about the last 6 weeks, nearly last 6 weeks of the final war. Okay, so 10-year wars, we are talking about the last final weeks war. Okay, so it is a tale of heroism, honor or tragedy. Tragedy, I have already told you कि tragedy का मतलब होता है जब कोई sad ending होती है और या फिर किसी की death हो जाती है या बहुत सारी deaths हो जाती हैं, तो जो ending होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो बहुत ही sad, sorrowful होती है. तो जब हम इलियड स्टोरी की बात करते हैं, बेसिकली जब हम ट्रोजन वॉर की बात करते हैं, तो ये स्टोरी क्यों हुई? एब्डक्शन की वजह से हुई. किसके एब्डक्शन की वजह से हुई? हेलेन. सो यू कैन सी मेनेलस, किंग ऑफ स्पार्टा की एक ब्यूटीफुल सी वाइफ, क्वीन थी, जो क्वीन ऑफ स्पार्टा, हेलेन. सो यू कैन सी शी वाज वेरी ब्यूटीफुल. नाउ व्हाट हैपेंस, हेलेन को प्रिंस पेरिस, यू कैन सी प्रिंस पेरिस, पेरिस प्रिंस जो है ट्रॉय के प्रिंस थे. ये इनके फादर थे प्रायम और उनके ब्रदर थे, एल्डर ब्रदर, प्रायम के नहीं, पेरिस के एल्डर ब्रदर थे हेक्टर. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट किंग प्रायम. उनके 2 सन्स थे, 2 बेटे थे. वन वाज bigger, elder one was Hector and छोटे वाला younger one was Paris. So Paris हेलेन को ले आए थे ग्रीक से अपने साथ. हालांकि हेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया था उन्हें. हेक्टर didn't like it personally that this elopement is wrong and he even said कि चलो शिप को वापस ले चलो और हेलेन को रिटर्न कराओ. But now he had to fight for the war. He had no choice. He had a choiceless choice. Okay, तो जब हम बात करते हैं ट्रोजन वॉर की, तो ट्रोजन वॉर एक वॉर थी अगेंस्ट द सिटी ऑफ ट्रॉय, और जो वॉर लड़ रहे थे इनके अगेंस्ट में वो थे एथेनियंस, जिनको हम बोलते हैं ग्रीक्स. ओके, तो अब पेरिस तो ले आया हेलेन को. नाउ व्हाट हैपेंड, अब वॉर चालू हो गई. अब वॉर चली 10 साल के लिए, और लास्ट फाइनल ईयर में जो है क्या हुआ, जब वॉर चालू हुई तो मेनेलस ने किस किस को बुलाया? एगमेमनन को बुलाया, जो कि ऑलरेडी सोच रहे थे कि
कुछ हरकत ट्रोजन वाले ऐसे करें कि हमें बस फाइट का मौका मिल जाए। सो नाउ एगमेमनन इनके साथ थे एक्लीज, तो ये इनके साथ फाइट कर रहे थे, इनके साथ थे ये मिले हुए टीम थे। मेलनस, एगमेमनन और एक्लीज की टीम एक साइड थी जो कि एकिनियंस थे, ग्रीक सिटी से थे, और पैरिस हेक्टर एक साइड से लड़ रहे थे जो कि ग्रीक की साइड से लड़ रहे थे। अब 10 इयर्स के 9 साल बाद क्या हुआ, जब ये ऑलरेडी ग्रीक्स जो है लड़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, एक सिटी है, टाउन है, बेसिकली स्मॉल स्मॉल टाउन है, वहां पर क्राइसियस, कहाँ पर, ट्रॉय सिटी में, तो इन्होंने उसे कैप्चर कर लिया। अब वहां पे कैप्चर कर लिया तो देयर वर टू ब्यूटीफुल ट्रोजन मेडन्स। मेडन्स आर बेसिकली अनमैरिड वुमेन्स, यंग लेडीज, सो क्राइसियस एंड ब्रीसियस। अब उस टाउन में इन्होंने इन दोनों लेडीज को, ब्यूटीफुल मेडन लेडीज को कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया एज वॉर ब्यूटी। अब क्राइसियस किसके पास गई, एगमेमनन के पास, और ब्रीसियस किसके पास रही, एकिलीज के पास। अब दिस इज वेरी कॉमन, अगर किसी की डॉटर को हम कहीं ले जाएंगे तो फादर तो गुस्सा होगा ही। अब उनके फादर आए क्राइसिस, उन्होंने एगमेमनन से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप मेरी डॉटर को जो है रिटर्न कर दो, इसके बदले में मैं आपको रैंसम दे दूंगा, आपको जो कुछ चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, आई कैन गिव इट टू यू। बट एगमेमनन डिनाइड कि नहीं, दीज आर वॉर बूटीज, वी कैन नॉट रिटर्न देम। ओके, तो अब एगमेमनन ने मना कर दिया। फादर कौन थे, क्रेसियस, क्रीसियस। अब उन्हें आया गुस्सा, अब वो थे रिलेटेड गॉड ऑफ अपोलो से। अच्छा, आप एक बात नोट करना, यहाँ पर ट्रोजन और जो इलियड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर गॉड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जब हम रामायण की बात करते हैं वहां पे वी डू नॉट सी गॉड का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हम। जब महाभारत होती है तो कृष्णा खुद कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट पावर्स आ रही हैं गॉड से, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है गॉड का। तो अब जब फादर रिक्वेस्ट करते हैं, वो गॉड ऑफ अपोलो से बहुत कनेक्टेड होते हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ग्रीक आर्मी में एक ऐसा प्लाग लाओ कि सब लोग, ये ग्रीक आर्मी डिस्ट्रॉय होती जाए। प्लाग होता है बेसिकली एक डिसीज, जिसके स्प्रेडिंग से बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं। तो अब एगमेमनन को समझ आया, जब ग्रीक आर्मी में इतने सारे लॉसेस हो गए थे, तो उसे समझ में आया कि हाँ, यही लड़की क्राइसियस जो है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ, शी इज द रीजन बिहाइंड द प्लान। तो वो उनको वापस कर देते हैं फादर को, और उनकी, अब वो क्या करते हैं, एक्लीज से, अब क्राइसियस तो गई, अब बच गई ब्रेसियस। अब वो एक्लीज से सुप्रीम थे, लीडर में, पोजीशन में वो उनसे बड़े थे, तो अब वो एक्लीज से वो डिमांड करते हैं कि अब तुम अपनी वॉर ब्यूटी को मुझे दे दो, अब तुम ब्रेसियस को मुझे दे दो। अब Achilles was very close to Briseis. His relationship was not same with what Agamemnon had with Chryseis. Agamemnon is very lusty, but when we see Achilles, he had a close relationship with Briseis. He was a little caring in the context of the same. So अब Achilles को बहुत गुस्सा आता है, because Briseis was not something that can be shared with anyone. So अब उन्हें गुस्सा आया, अब वो खुद फाइट नहीं कर रहे थे, चिढ़ के गुस्से में रेजफुली उन्होंने एगमेमनन की तरफ से फाइट नहीं किया, और उन्होंने अपनी मदर थेटिस से, दैट देयर अगेन वी सी वन मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गॉड, उन्होंने अपनी मदर थेटिस से रिक्वेस्ट किया कि ज्यूस की हेल्प लेके, गॉड ज्यूस की हेल्प लेके ग्रीक्स को हराते जाओ, इनको जिताओ मत। अब गॉड थे तो विश तो पूरी होनी थी। नाउ देयर वाज लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ लॉसेस ऑन द ग्रीक आर्मी। तो अब जब ग्रीक आर्मी का लॉस हुआ, तो अब एक्लीज ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने फ्रेंड पेट्रोक्लस को उनके लिए भेज देता हूँ। तो अब ये पेट्रोक्लस को भेज देते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि पेट्रोक्लस की डेथ हो जाती है। हेक्टर wins over Patroclus. Achilles gets very angry. He was not fighting for the country or for the Greeks. He was fighting only for himself, because उनको अपनी ऑनर ज्यादा इम्पोर्टेंस थी एज कम्पेयर टू हेक्टर। हेक्टर अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे, he was fighting for the country, he was fighting for the city of Troy. But Achilles was very close to Patroclus. Now, out of rage, out of anger, out of the furious nature, he killed Hector. He drags Hector into, and he ties him into the chariot. अब वो रथ पे बांध देते हैं, and he drags him over there. Now Hector dies. अब ज्यूस को लगता है कि Hector needs a respectful burial, तो वो प्रायम को indications देते हैं, and he asks Priam to go back to request Achilles to return the body of the
Hector. Now Achilles understand that yes, he is saying right that it must be important as a father कि उन्हें वापस बॉडी दी जाए, क्योंकि अगर मैं हेक्टर की जगह होता और मेरे फादर रिक्वेस्ट कर रहे होते तो ही फील्स connection there. So now he returns the body and he even attends the meal of the funeral. So now this is all about the Trojan War. Now, next, what we are going to understand is the themes of Iliad. So there's conflict and wrath, the Trojan War, Achilles की rage, उनका गुस्सा, पेट्रोक्लस की डेथ बेसिकली क्यों होती है, क्योंकि Achilles फाइट ही नहीं करते हैं, वो अपनी जगह उन्हें भेज देते हैं, एंड देन फाइनली उसकी वजह से जब पेट्रोक्लस का लॉस हो जाता है तो Achilles फिर हेक्टर का फेट डिसाइड कर देते हैं, वो उनको इतने बुरे तरीके से घसीटते हैं कि हेक्टर डाइज. बट व्हेन वी सी कि इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो हेक्टर ने अपनी ट्रॉय सिटी के लिए, अपनी सिटी के ऑनर के लिए फाइट किया, बट एक्लिस ने अपने आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ ऑनर, पर्सनल ऑनर के लिए फाइट किया. सो नाउ नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरटेक्सुअल रेफरेंसेस, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि रामायणा जो है वो बैटल थी बिटवीन राम एंड रावणा, एंड महाभारत सिमिलरली एपिक पोएट्री है, वो किन के बीच में थी, पांडवास और कौरवास. सो वन रिप्रेजेंटिंग द गुड साइड, अनदर वन द एविल साइड. बट इलियाड में जब हम देखते हैं, इलियाड वाज आल्सो अबाउट वन गुड वन बैड, बट इसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और क्योस था, क्योस उन दोनों में भी था. बट सी व्हाट इज द डिफरेंस इज गॉड्स आर फोरग्राउंडेड अनलाइक द इंडियन एपिक्स. जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई कृष्ण भगवान खुद नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ गाइड कर रहे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी पावर्स का यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अर्जुना को गाइड किया कि ऐसे करो या वैसे मत करो. बट एलियाड में तो जो हेक्टर ने प्रे किया, जो क्रीसियस ने प्रे किया, सब कुछ फुलफिल हो रहा था. इवन ये आप एक तरीका समझ लो कि गॉड अपना बदला ले रहे थे एक दूसरे गॉड से थ्रू दीज kings and the yes army soldiers. That's right. Now when we talk about the Iliad, so we see constant पूरा का पूरा सपोर्ट है, पावर है, पूरा पार्टिसिपेशन है पूरे गॉड्स का, ज़्यूस एंड देन एपोकलिप्स एंड देन होम्स, हर एक भगवान पूरा पूरा प्रोसेस में पूरा क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो हमने बात की कि जब रामायणा की बात करते हैं तो हम गुड एंड इविल की बात करते हैं, जो राम वाली साइड है वो किसकी बात कर रहे हैं, हम गुड साइड की, और रावणा जो है वो इविल साइड. सिमिलरली द कुरुक्षेत्र वॉर वी आर टॉकिंग अबाउट, महाभारत आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो महाभारत इज ऑल अबाउट द कुरुक्षेत्र वॉर एंड इट डील्स विद द लास्ट 18 days of Kurukshetra wars. And Krishna Lord or whatever you say, he was constantly guiding Arjuna, but there was no direct participation, there was no use of forces, no use of powers from the side of God. The humans, the kings were only participating, they were fighting it on their own. But when we see it in comparison to Iliad में तो वो लोग खुद तो लड़ ही नहीं रहे थे, सब कुछ तो ऊपर से करा कराया हो रहा था. So similarly we can see the characters, जैसे कि अर्जुना और कर्णा है, एक्लिस और हेक्टर है, रामा और रावणा है. हालांकि हेक्टर भी जो है एक क्या है, सिमिलर पावरफुल है, बट वो ही है कि गॉड का इंटरवेंशन था, तो जो हेक्टर के फेट में लिखा था वो फुलफिल होना ही था. नाउ व्हाट आर एपिक्स, एपिक्स की बहुत सारे लोगों ने, बहुत क्रिटिक्स, पोएट्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है. सो यू कैन रिलेट देम, यू कैन यूज एनी वन और टू इफ यू वांट टू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन एपिक, in order to score good marks, if you quote one, you'll score more than sufficient mark in that. But I'll give you a proper definition of what is an epic. So Iliad ही नहीं, हमारे वेस्टर्न लिटरेचर में और भी बहुत सारी क्या है एपिक पोएट्री हैं, जैसे कि होमर की इलियाड और ओडिसी, वर्जिल की द इनियड. अब ये जो वर्जिल ने लिखा, इलियाड के बाद का सीक्वल आप इसे समझ लो. अब जब हम बात करते हैं जैसे कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, एंड देन इजरा पाउंड कैंटोस, और एपिक नॉवेल्स हो गए जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय का एना कैरिना, Goethe's Soar of Young Wuthering, and then Brett's Mother Courage plays हो गए जैसे कि Mother Courage and Her Children, और epic films हो गए जैसे कि Ben Hur. तो बहुत सारे एपिक्स हैं हमारे वेस्टर्न लिटरेचर में भी. नाउ व्हेन वी मूव अहेड, व्हाट आर एपिक्स, ये एपिक्स होती क्या है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि एपिक क्या होता है, या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, या फिर आपका लॉन्ग आंसर में आ जाएगा, मीडियम आंसर में आ जाएगा कि एपिक्स क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो थोड़ा सा फोकस और बढ़ाइए यहाँ पे। एपिक्स बेसिकली लॉन्ग पोम्स होती हैं, जैसे कि रामायण है। रामायण 24,000 वर्सेस में लिखी गई है, लाइन्स में लिखी गई है। और इसमें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आपको नोट करने वाला, वो ये होता है कि इसमें हीरोइक डीड्स होती हैं प्रोटैगनिस्ट की। अब हमारी रामायण में प्रोटैगनिस्ट कौन है? एग्जैक्टली लॉर्ड रामा। तो लॉर्ड रामा की हीरोइक डीड्स और उनकी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी डीड्स के बारे में बात करी जाती है, और सिमिलरली हम इलियाड में देखते हैं। अब जो हमारी रामायण है और जो हमारी महाभारत है, वो क्या है? बेसिकली इतिहास बोलते हैं हम उन्हें, इतिहास, राइट? सो इतिहास होता क्या है? दैट हैज ट्रूली हैपेंड। तो जो ये एपिक पोम्स होती हैं, ये क्या होती हैं? ये हिस्टोरिकली एक्चुअली सच में होती हैं। ओके, सो देयर नेचर इज दे आर हिस्ट्री as it truly happened. So therefore, epic is a long poem including history that depicts the heroic deeds of the protagonist. For example, ये किसने definition दी है? इलियड। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये डेफिनेशन किसने दी है? एजरा पाउंड ने दी है। एजरा पाउंड कौन है? अमेरिकन पोइट और क्रिटिक है। सो आप ये डेफिनेशन जो है अपने एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। दैट एपिक इज अ लॉन्ग पोम इंक्लूडिंग हिस्ट्री दैट डिपिक्ट्स अ हीरोइक डीड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। रामायणा इंडियन एपिक, और यू कैन मेंशन वेस्टर्न एपिक, इलियड यूरोपियन एपिक। ओके, सो इट्स योर चॉइस। सो आप ये डेफिनेशन लेके उसके दो तीन पॉइंट्स के बारे में बात करके एग्जाम्पल यूज करके यू कैन राइट द। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। अब एपिक के बारे में समझ लिया, एपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड डायरेक्टली क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर। सो दिस इज द टॉपिक जो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इट डील्स विद हीरोइक डीड्स ऑफ एन एक्सेप्शनल मैन। ओके, सो ये एक ऐसे एक्सेप्शनल मैन की हीरोइक डीड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी समझा कि लॉर्ड रामा जो है उनके बारे में बात करता है। ओके, और उनकी क्वालिटीज, हीरोइक क्वालिटीज के बारे में बात करता है कि कैसे वो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा के वो अपनी सीता मैया को वापस लेने आते हैं। एंड देन इट इज अ लार्ज स्केल पोम। ओके, मोस्टली रिटन इन वर्स। ओके, अब जो हमारी एंशियंट एपिक्स हैं वो वर्स फॉर्म में लिखी जाती हैं, और जो मॉडर्न एपिक है वो प्रोज फॉर्म में लिखी जाती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें द इलियड एंड द ओडेसी, ओके, ये 24 बुक्स में रिटन है। ओके, और ऐसे ही जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, ये भी कितने 12 बुक्स में रिटन है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट अनदर वन, इट प्रेजेंट्स द हीरोइक आइडियल्स। ओके, अब हीरोइक आइडियल्स क्या है? जैसे कि करेज हो गया, ओके, ऑनर हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, पेट्रोइटिज्म हो गया, काइंडनेस हो गया। अब ये सब कैसे? जैसे आप इलियड स्टोरी में देखते हो कि हेक्टर के अंदर सेक्रीफाइस, पेट्रोइटिज्म बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। हेक्टर जो है वो अपने ब्रदर के अगेंस्ट है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरा भाई पेरिस जो है ही डिड रॉन्ग थिंग। वो हेलेन को लाके उसका एब्डक्शन करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, बट ही हैड नो पर्सनल चॉइस। अब एज सन ऑफ अ किंग ही हैड टू फाइट। उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया। उनके खुद के बीवी थी, उनका खुद का बच्चा था, बट ही हैड टू फाइट बिकॉज ही हैड अ चॉइस, लेस चॉइस। बट अगर हम बात करें, एंड ही ऑल्सो हैड करेज बेसिकली, और अगर हम बात करें एकिलीज की, तो उनके लिए तो पर्सनल ऑनर बहुत भर भर के, कूट कूट के भरा हुआ था। ठीक है, उनकी ग्लोरी, उनका पर्सनल ऑनर, ये एकदम उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी। देन व्हेन वी टॉक अबाउट एरिस्टोटल्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ये जो है यहाँ पर हम एरिस्टोटल की यूनिटी ऑफ एक्शन भी देखते हैं। So then when we talk about Aristotle's unity of action, it is very important for you to understand कि Aristotle कौन थे। Aristotle basically Greek poet और एक critic थे। इनके टीचर थे प्लाटो, और इनके स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इन्होंने पोएटिक और रेटोरिक जैसे ग्रेट वर्क्स लिखे हैं। So when we talk about Aristotle's unity of action, इनके साथ दो और कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, दैट आर यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम। दैट्स राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या बात करता है कि एक जो आपका प्लॉट है वो एक ही एक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, वहां पे कोई और सब एक्शन या कोई सब प्लॉट नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो वो भी बहुत सब मिनिमल होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, बट इफ इट हैज, वो बहुत ही सब मिनिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टोरी के अंदर कोई स्टोरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक एक्शन होना चाहिए और इवेंट्स उसके लीडिंग फर्दर होने चाहिए।
सो इलियाड में ये बहुत ही क्लियर है कि गॉड्स की फाइट चल रही है और उनका आपस का बदला चल रहा है। क्या चल रहा है? लड़ाई के थ्रू, दैट वॉर के थ्रू। सिमिलरली हम रामायण और महाभारत में देखते हैं कि गुड और एविल के बीच में लड़ाई चल रही होती है, वो चलती जाती है और फिर फाइनली गुड कॉन्कर्स। ओके, सो गुड विंस, विक्ट्रीज ऑफ द गुड। सो नाउ अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो हमेशा एक एपिक पोइट्री जो है एक स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है? थीम से। थीम होते हैं जो हम बार बार ऑब्जर्व करते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं जो प्लॉट में। सो जो इलियाड है वो रेज के थीम से बिगिन होती है। रेज, गॉडेस सिंग द रेज ऑफ एलिस एक्हेलिस। सो नाउ व्हेन वी मूव अहेड, ऑल्सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि जो एपिक्स होते हैं दे बेसिकली आर रिटन इन स्टाइलिस्टिक ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। ओके, जैसे कि सिमिलीज, मेटाफोर्स, आयरनीज, ये सब बहुत कूट कूट के भरा होता है। नाउ when we talk about then further when we talk about the next point, it includes the invocation of muse. अब ये muse का concept है mythology से related. So नाइन गॉडेस थी, उनको इन्वोक करते हैं। इन्वोक का मतलब याद करना, प्रे करना। ओके, जैसे कि आप लोग देखते हो बेसिक बॉलीवुड मूवीज में, सो वेन एवर अ मूवी इज गोइंग टू बिगिन, उससे पहले हम लॉर्ड गणेशा की इन्वोकेशन देखते हैं। ओके, सो इन्वोकेशन आर बेसिकली द प्रेयर्स। सो 9 बेसिकली गॉडेसेस हैं माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, और होमर जो है उनको एवोक करते हैं, इन्वोक करते हैं, याद करते हैं, प्रे करते हैं उनसे। नाउ द सेकंड 7th पॉइंट इज दैट जो हमारा एपिक है वो मिडल ऑफ द स्टोरी से स्टार्ट होता है। जब आप देखते हो कि कुछ स्टोरीज जो है एकदम शुरू से स्टार्ट होती हैं, इट स्टार्ट्स विद वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वर सन्स। नो, ऐसा कुछ नहीं होता एपिक में। एपिक में बीच में एक प्रॉब्लम आएगी या फिर कुछ ऐसा प्लॉट आएगा एंगेजिंग सा, इंटरेस्टिंग सा, और फिर उससे पहले की इवेंट्स, व्हाट हैपेंड बिफोर, एंड फॉर शेडोइंग कि आगे क्या होने वाला है, वो उनके बारे में बात करता है। और इस चीज को, जब चीजें मिडल से स्टार्ट होती हैं, तो इसको मेडियास भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बिल्कुल बिल्कुल पूछा जा सकता है। देन देयर इज यूज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ सुपर नेचुरल। आप पिक्चर में देख सकते हो कि गॉड्स का, डेमन्स का और ऐसी बहुत सारी सुपर पावर्स का जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और जो एक्शंस है वो गॉड्स के थ्रू आ जाते हैं, बैड को पनिशमेंट होती है, और ये सब चीजें आउटकम करती हैं ह्यूमन रिजल्ट में। And then we see catalogs and genealogies. Genealogies means जब हम किसी की ancestor, family ancestors को पढ़ते हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन किससे कैसे related है, तो आप इलियाड में देखते हो कि genealogies और catalogs और जो list of objects है, places है और people है, वो बिल्कुल अच्छे से आपको action से divide करके दिखाया गया है। और ये जो होमर है वो ancestors को homage पे कर रहे हैं, ऑडियंस को बता रहे हैं कि कौन कहाँ से आ रहा है। मेन कैरेक्टर्स जो हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी स्पीचेस यूज कर रहे हैं। एंड देन दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। लॉन्ग पोएम्स मिडल से स्टार्ट हो रही हैं और इन सब चीजों की बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स तो पक्का पक्का आने वाली हैं, तो इन चीजों को तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट, वी टॉक अबाउट द होमरिक ट्रेडिशन, द क्लासिकल एपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिक वर्ड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्लासिक मतलब वेरी फर्स्ट इन रैंक, कि बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, शुरू से हुई हुई कोई चीज। जैसे कि व्हेन वी ड्रेस वी थिंक अबाउट, वी वांट टू लुक क्लासी, सो दैट इज व्हाट क्लासिक, बेसिक, very first thing, superior, something exemplary, something very beautiful, highest rank में जो है। okay, and then there's a difference between classicism and romanticism. Classicism is all about beauty, taste, clarity, order, और इसको बोलते हैं व्हीकल, किसका? रीजन और लॉजिक का। तो जब हम क्लासिसिज्म की बात करते हैं तो वहां पे रीजंस और लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब हम रोमांटिक्स की तरफ आते हैं, तो ये है एक व्हीकल ऑफ इमेजिनेशन, एस्केप। okay, so now when we read the classical writers work, they are free of personal biasness. हम होमर के वर्क में होमर को नहीं देखते, हम किसी प्रीजुडाइज को नहीं देखते कि जो होमर थे उनको इस चीज से या इस कॉन्सेप्ट से नफरत थी तो उन्होंने वो अपनी पोम में दिखा दिया। नो, देयर इज नो पर्सनल बायसनेस एंड नो प्रीजुडाइज। लेकिन आप अपने मॉडर्न वर्क्स में देख लो या किसी ऐसे पॉइंट में देख लो, तो वहां पे आप डायरेक्टली पर्सनल बायस और वो देखते हो जो राइटर खुद है। अगर मैं किसी चीज को हेट करती हूँ, मैं अपने वर्क में लिखती हूँ, बट नो, क्लासेस राइटर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप शेक्सपियर के वर्क्स का कहीं नहीं देखते हो कि शेक्सपियर का रेफरेंस है। ओके, सो इट इज फ्री ऑफ पर्सनल बायस एंड प्रेजुडाइज। और जो ग्रेट क्लासिकल वर्क्स है वेस्ट के, वो स्टार्ट होते हैं होमर से, और थ्री ग्रीक ग्रेट
ट्रेजेडियंस जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, एंड फिर ये फर्दर मूव करता है आपके स्किलर, गोथे और शेक्सपियर की तरफ। और जो क्लासिक्स हैं ये किस चीज से डील करते हैं, ये डील करते हैं कि मैन की बैटल किस चीज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और मोरल रिस्टोरेशन लाना, जैसे कि हेक्टर था, उन्होंने बिल्कुल एकदम ह्यूमैनिटी के लिए बैटल की, ओके, अपने किंगडम के लिए बैटल की, सैक्रिफाइसेस किए और मोरल रिस्टोरेशन को वापस लाना ऑनर के थ्रू, ओके। अब ऑनर पर्सनल भी हो सकता है और कंट्री का भी, सिटी का भी हो सकता है, ओके। तो ग्रीक क्लासिक्स जो थे वो वहां पर मैन वाज नॉट फाइटिंग फॉर विन बट फॉर अ लॉस, ओके। अब जो हेक्टर हैं उन्हें ऑलरेडी पता था कि वो मारे जाएंगे, बट उन्होंने फिर भी फाइट किया बिकॉज ही हैज अ चॉइसलेस चॉइस। ऑल्दो उन्होंने पेरिस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया कि हेलेन का अबडक्शन जो है वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, हालांकि हमें वापस कर देना चाहिए था, बट उनको अपनी पावर, कंट्री की पावर, नॉट पर्सनल पावर, ऑनर, ग्लोरी, उसके लिए ये सब चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ी और ग्रेट लॉस हुआ, उनकी डेस्टिनी डिसाइड की गई। तो इलियाड जो है दो ग्रेट हीरोज के बारे में है, और जो गॉड का सब्जेक्ट है फोर्स, वो हम बहुत डायरेक्टली इसमें देखते हैं इलियाड में। और हेक्टर जो है, जैसे हेक्टर का फेस, उसको ह्यूमिलिएट किया गया डेथ के थ्रू, उसकी पावर से उसको हटा दिया गया, मार दिया गया, उसकी डिग्निटी, पावर, सब कुछ लास्ट में भी सी कि उसको कैसे चैरियट पे जो है इधर से उधर ड्रैग किया जा रहा है, डेड बॉडी को इधर से उधर एक्लीज के थ्रू, तो उसकी सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, उसका फेट ही वही था, ओके। अब एक्लीज भी जो है जीत जाता है, ऑल्दो ही विंस, बट ही कैन नॉट ओवरकम हिज ओन मोर्टैलिटी, ही वाज इवन किल्ड बाय पैरिस, ही शॉटेड ऑन हिज हील। तो एक्लीज का भी कोई खुद का, जीत तो गए लेकिन कोई एक स्टेज नहीं है जहां पे बस सब कुछ खत्म है, आई एम द विनर, नो, उसकी भी मोर्टैलिटी तो नहीं बच पाई, वो इमोर्टल तो नहीं हो पाए, जीत गए बट खत्म तो वो भी हुए। सिमिलर हैपेंड विद एगमेम्नन, वो भी खत्म हो गए, उनके सन ने उनको मार दिया एंड देयर वाज लॉस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये चीज हम शेक्सपियर के थ्रू पढ़ते हैं, आप इसको अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो जब आप होमरिक ट्रेडिशन के बारे में लिखते हो कि वी आर unto gods like flies to boys who kill us for their sport। जैसे हम मच्छर मक्खियों को ऐसे कैच कर लेते हैं, वी कॉन्कर वी पावर, हटा देते हैं, तो सिमिलर हैपन विद अस, सिमिलर इज हैपनिंग विद अस इवन, ओके, कि जो भगवान की मर्जी है, जो गॉड्स की मर्जी है, वो हमें अपने लिए मारे, अपने स्पोर्ट के लिए मारे, जिंदा छोड़ दे, हमें क्योर्स कर दे, कुछ भी कर सकते हैं वो, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, यू कैन कोट इट इन योर एग्जाम आंसर्स, ओके। एंड होमर्स का जो वर्ल्ड है वो कहाँ पे सेंटर अराउंड होता है, पावर एज आइडियल, कि पावर ही सब कुछ है, ओके। अब चाहे उस पावर के बदले किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी को पेन हो रहा हो, बट पावर तो पावर है। एक्लीज ने पावर के लिए लड़ा, खुद की पावर के लिए, हेक्टर ने कंट्री और अपने किंगडम की पावर के लिए लड़ा, बट पावर किसी के पास नहीं है, अल्टीमेट पावर्स आर अप टू गॉड। नाउ दिस सम्स हियर, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, बेसिकली कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट हेक्टर, बी इट प्रायम, बी इट एक्लीज। तो हम वी विल बी डिस्कवरिंग अबाउट देम, वी विल बी नोटिंग मोर पॉइंट्स अबाउट देम इन द upcoming units। And destiny of Hector, basically of Achilles, and then there are quotes. This quote I will cover in the next unit because it is the quote of the next unit. And then there comes long answer questions. They flow directly. Explain the characteristics of epic. And does the Homeric concept of war different from our present day attitudes toward the war? तो आप ये directly answers में quotes कर सकते हो, जैसे कि we have talked about the characteristics, तो आप directly कैसे answer कर सकते हो, आप इन pointers को लिख सकते हो, एक definition ले सकते हो, एक quote ले सकते हो, जैसे कि श्री औरबिंदो बोलते हैं, या श्री औरबिंदो बोलते हैं एपिक के बारे में। अगर इट्स योर चॉइस, अगर बहुत स्पेशल आंसर बनाना है तो आप इसको कोट कर सकते हो। देन डायरेक्टली यू कैन राइट अबाउट कि हमारे एपिक्स इतने सारे हैं, ये और ये एपिक्स हैं। देन यू कैन राइट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एपिक एंड देन डायरेक्टली स्टार्ट कर दो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यू कैन राइट। एंड देन फर्दर विल कवर द कमिंग थिंग्स इन द next class. So I hope everything is clear. We'll meet you in the next unit, next class. अगर आपको कोई भी doubts है, concerns है, so you can feel free to drop them in the comment box. Thank you.